Good evening and a warm welcome to India Today. We've got some breaking news that's coming in at the top of this hour. There's been some chaos at the Hanuman Jayanti celebration in Delhi. Miscreants, in fact, pelted stones at devotees. Several cops have been injured. This is the latest piece of information that's coming in, preliminary information that's coming in from Delhi from Hanuman Jayanti celebrations in the national capital. Chaos at these celebrations. Miscreants, in fact, pelted stones at devotees, and several cops too have been injured. Those are the visuals that are coming in right now as we speak. As you can see, cops have been injured in this mishappening that has taken place in Delhi. We're trying to, of course, get more details about this incident, which has in fact transpired in Delhi. Several vehicles have been vandalized as well, is what is being reported at present. Violent clashes in Delhi's Jahangirpuri area. That's the latest information that's coming in right now. This is of an incident that has taken place in Jahangirpuri. Those visuals that you can see of celebrations that were happening on the occasion of Hanuman Jayanti, but you can see that chaos broke out completely over there and miscreants pelted stones. We don't know the identity of these individuals who in fact pelted stones at the devotees who were part of this procession, but violent clashes that have broken out in Delhi's Jahangirpuri area. Vehicles have been vandalized and cops have been injured in these clashes as well. We're trying to get more details of this incident. This was an incident of celebrations on Hanuman Jayanti, a Shobha Yatra, a procession which was being in fact organized by certain devotees and some groups, and we hear right now is that some miscreants pelted stones and tried to create a pandemonium and chaos at these celebrations, which resulted and erupted in violent clashes in which even cops and policemen who were present at the scene in fact were injured. Vehicles were also vandalized. This is some of the preliminary information that's coming in. We will try to ascertain some of those details and try to get you an official version from the police as well. But that's the latest piece of information that's coming in. Remember that Hanuman Jayanti is being observed across the nation today, and we've heard of some sort of flare-ups in certain places in terms of controversy breaking out over the playing of loudspeakers, playing of azan over loudspeakers outside mosques, and many fringe outfits that said that they will be playing the Hanuman Chalisa over loudspeakers in order to ban loudspeakers outside mosques. We do know that the MNS also said and has given an ultimatum to the Maharashtra government that loudspeakers outside mosques should be banned, and MNS chief Raj Thackeray was in fact at a program, a Hanuman Jayanti program in Pune. Tanseem Haider is now joining me on this story. Tanseem, हुआ क्या? जी देखिए, ये जहांगीरपुरी का इलाका है जो सी ब्लॉक कुशल सिनेमा का इलाका कहलाता है। ये एक छोटा सा चौराहा है जहांगीरपुरी में, जहाँ पे आज ये हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकाली जानी थी। इसी दौरान अचानक यहाँ हंगामा शुरू हो गया और जो बताया जा रहा है, जानकारी, इनिशियल जानकारी है, उसके मुताबिक कुछ लोगों ने जो शोभा यात्रा थी उसके ऊपर पथराव किया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि इलाके के लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर और आसपास के तमाम जो वाहन गुजर रहे थे उनके ऊपर पथराव किया, जिसमें करीब 4 से 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और इसके अलावा कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि शुरुआती जांच में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है और मौके पर स्पेशल कमिश्नर, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी के समेत तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया गया है। वहां पे दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि जो फिलहाल स्थिति है वो नियंत्रण है, कंट्रोल में है और अलग से और भी फोर्स बुलाई गई है ताकि किसी भी तरह का माहौल खराब होने की स्थिति में जो फसाद करने वाले लोग हैं उनसे निपटा जा सके। तो अब इनमें जो पुलिसकर्मी घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर भारी मात्रा में, भारी तादाद में पुलिस तैनात की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि कोई शोभा यात्रा के दौरान किसी नारेबाजी को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ और इतना ज्यादा, इस कदर यह हंगामा बढ़ गया कि जिसने इसमें पथराव की शक्ल अख्तियार कर ली। तो जाहिर है दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर मौके पे मौजूद हैं और जानकारियां हासिल की जा रही हैं। वो तमाम फुटेजेस जो मौके पर मौजूद थे लोगों ने, जिन्होंने अपने मोबाइल में जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, उनसे पुलिस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने राजधानी दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश की है। क्या ये पहले से कुछ प्लान किया गया था या फिर अचानक किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि ये हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव की घटना हुई है।
जी तंसीम, आप बता रहे हैं कि कुछ किसी तरह की नारेबाजी हुई जिस वजह से इस तरह का फिर फसाद खड़ा हुआ और जिससे पत्थरबाजी भी हुई उसके बाद में, और क्लैशेस जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो शुरू हो गए जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। किस तरह की नारेबाजी हुई? और आपने ये भी बताया कि अभी तक उन्हें पता नहीं कि किन लोगों ने फसाद खड़ा करने की कोशिश की, पर कोई भी जानकारी जो सामने आई है अब तक? जी देखिए, पुलिस अफसरों का कहना है कि किस तरह की नारेबाजी हुई, ये अभी तमाम तरह के और वीडियोस पुलिस के पास आ रहे हैं। उसको पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं उसको एग्जामिन कर रही हैं कि आखिर ये विवाद कहां से शुरू हुआ और फिर पथराव सबसे पहले कहां से किया गया, किन लोगों ने शुरू किया, हंगामे की शक्ल दी, क्या वो उस इलाके के लोकल लोग थे या कहीं बाहर से आए हुए थे जो माहौल खराब करने की जिन्होंने कोशिश की है। क्योंकि ये प्लान पहले से था, पूरे देश में, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में हनुमान जयंती के दौरान, हनुमान जन्मोत्सव के दौरान ऐसा ये जगह जगह निकाले जा रहे थे जुलूस। तो दिल्ली में भी कई जगहों पे जुलूस निकाले गए, पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में जुलूस निकाले गए। लेकिन जहांगीरपुरी में जब ये जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान इस तरह का हंगामा होना तो अपने आप में एक ताज्जुब पैदा करता है। अफसरों के लिए भी यही वजह है कि जो बड़े अफसर हैं वो मौके पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरी स्थिति को। और फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि कहां से ये विवाद शुरू हुआ, उसके बाद पथराव किस हालात में किन लोगों ने किया, उनकी गिरफ्तारी और उनको हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो क्या सिर्फ पुलिस कर्मी इसमें घायल हुए हैं कि जो आम जनता थी, जो श्रद्धालु थे, जो इस जलसे में हिस्सा ले रहे थे, क्या वो भी घायल हुए हैं? जी, अभी फिलहाल जो हॉस्पिटल से पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर आई है, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कुछ लोग छुट-पुट घायल हुए हैं, लेकिन कोई सीरियस इंजरी या इस तरह की खबरें अभी पुलिस की तरफ से ना ही जारी किया गया है कोई बयान, ना ही कोई खबर ऐसी बताई गई है कि सिविलियंस को उसमें कोई नुकसान पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि जो अटैक किया, जो पथराव किया, उससे सबसे ज्यादा जो चोट पुलिस कर्मियों की आई। मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, उनको चोटें आई हैं और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इस वक्त पुलिस क्या कह रही है तंसीम? किस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि नियंत्रण बनाए रख सके, जो एक पीस है वो बनाए रख सके इस घटना के बाद? जी देखिए, इस घटना के बाद क्योंकि मामला राजधानी का है, दिल्ली का है, तो दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी और इलाके के जितने भी जुड़े हुए एसीपीज हैं उनको मौके पर बुला लिया गया है। फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। उसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड, जैसा कि मैंने बताया, जो यूनिट हैं जो फोटो फुटेज को एग्जामिन कर रही हैं, वो अलग से अपना काम कर रही हैं। और पुलिस अफसरों का कहना है जरूरत पड़ी तो और फोर्स तैनात की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो शांति बनी हुई है इलाके में और उन लोगों को पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने इस तरह का फसाद करने की कोशिश की है राजधानी दिल्ली में। फॉलो मी। Right. Tanseem Haider, thank you so much for bringing us those details. Those are those visuals that are coming in from an incident that was witnessed earlier in Jahangirpuri in the national capital. Clashes broke out, violent clashes, in fact, broke out in the national capital when a procession, a Hanuman Jayanti procession, was pelted with stones by miscreants. The police are yet to identify those who are accused of this incident, but there are cops who've been injured in this incident as well.